Namaskar. In this episode of Dil Se, we're going to talk about a very sensitive and a very important subject that actually will impact the future of our republic. As you know, that when the republic was crafted through our constitution, those who fought for the future realized the nature of our polity, the nature of our society, what needs to be kept sacred, what needs to be protected, and what needs to be fought for. Essentially, the preamble of the Constitution talks about fraternity, talks about liberty, talks about equality. But when you look at the Constitution, you ask yourself the question, under our Constitution, what is the essential identity of a person who lives here? And quite frankly, my own opinion, and we will discuss that with those who are here today as our guests, is that essentially my identity with this country under the Constitution is as a citizen of India. Whether I acquire that citizenship through registration, by birth, or by any other means, I am a citizen of this country and I have a right, no matter which religion I belong to, which race I belong to. As a citizen, I have the right to be protected by the state. I have the right to espouse the causes that I believe in, and I have the right to be treated equally. Now, the Constitution has several other provisions that relate to certain sections of society. There are provisions that seek to protect the Dalits, the scheduled castes, the scheduled tribes. There are provisions that seek to protect women in our country. There are provisions that seek to protect the minorities in our country. May they be Muslims, may they be Sikhs, may they be Christians, or others. But these are identities which are far away from the basic concept of citizenship. Why do they need protection? Because at the time when the Republic was framed, the Constitution makers realized that we need to give certain benefits to certain classes of citizens who may belong to a certain sex, a certain religion, a certain social class, the backward community, the SC and STs. But they are not identities that are relevant in the context of our Constitution. They are benefits granted and recognized by our founding fathers. So we're going to talk about one issue today, and I have three stalwarts belonging to a minority community with me. And we're going to talk about how they feel in the India of 2024. I have with me Professor Faizan Mustafa. He is a renowned academic. At presently, he is the Vice Chancellor of Chanakya National Law University in Patna. And he is a founder of the National Law University in Orissa. And he is the former Vice Chancellor of Nalsar. Sir, you have passed out from Aligarh Muslim University. You're a doctorate. And I can't even start talking about the international recognition that you have received at several forums. You are exceptionally articulate. You've written so many articles which people read with great interest. And you essentially have a liberal mood in terms of your thinking. So thank you very much for being here. I have my friend Najib Jung, and he is, of course, a fellow Stephanian, joined the IAS in 1973, and he was in the Madhya Pradesh cadre. He held several positions in the ministry. He then ultimately in 1999 resigned and went to the ADB. In the meantime, of course, he did many things. He's an expert in energy and in fact has written a book, edited a book on energy and also compiled, written several articles on it. He belongs to a very illustrious family. He also believes that in the context of India today,
We need a mind, the political authority must have an expansive, inclusive mind. And I hope sort of that turns out to be true. On my left is Arfa Khanum Sherwani ji. She is an extraordinary journalist, a journalist who's worked on the ground, perhaps the only journalist who represented India, or rather, who worked in the elections of the president of Afghanistan at that time, right? Way back. She has worked with Sahara, she has worked with NDTV, she is, of course, now with the senior editor of The Wire. She has, again, received several rewards as a journalist. I can keep sort of citing them. She's also a member of the Rajya Sabha TV. If I remember correctly, you were awarded the Sahitya Samman from Hindi Academy. You were recipient of the Chameli Devi Jain Award as an outstanding woman journalist. So we have three outstanding guests with us today. But let me start off with this question. What's the identity of a Muslim in the context of our constitution? And what do you think? Thank you very much, sir. And someone who has been teaching constitutional law for decades, you rightly said in your introduction that the preamble talks of our identity, that what is the identity of a nation? Right. So in the very first line, it describes our nation as sovereign, secular, socialist and democratic republic, and words really don't matter. So this argument that, we became secular and socialist in 76 probably is wrong, because probably we were far more secular before 1976. And increasingly we are probably becoming less secular. We don't have word federal in the constitution, but we are a federation. It was said to be the basic structure of the constitution. Then preamble talks of what kind of nation we want to create. Right. And in this nation, what would be the entitlement of citizens. Right. And it talks of liberty and equality and freedom of faith, belief and worship. And then it tells us what is the goal of all this. Why these entitlements? As you rightly said, the goal is to have fraternity. And we are the one who have adopted and enacted and given this constitution to ourselves. So basically our fundamental identity is as citizen of India. But citizen of India also represent different groups in our society. And that's why our constitution talks of special protection for that groups. And that's why, about Article 29, which is considered to be right of minorities, even though in the text of the article, you don't find word minority. It is only in the head note when it says protection of interest of minorities, but it says any section of Indian citizens having the distinct language, script and culture shall have the right to conserve the same. And I feel really annoyed that debate after debate, we consider the question of a minority only in terms of religious minorities. While in our country, everybody is a minority. Even Hindus are religious minority in some states and in some union territories. If you ask me, if I differ with the government and the majority of the people of this country have a certain point of view, I too am minority. Yeah, political minorities. And in our neighborhood, dissenters have been at a receiving end. But sir, the question I wanted to ask was, these protections are fine, but these protections have nothing to do with your identity under the Constitution. Your identity under the Constitution is of citizen of India. And as someone who has given to ourselves this Constitution. So basically, to me, the Constitution is a covenant, a sacred covenant between the state and the people. We have constituted this state. And as citizens, we need to be protected. We have to be protected. And treated equally. That's right. Najib ji. Well, sir, I would say that the concept of protection to the minority has been blown to smithereens. The Muslim community, let me stick to that, is sullen, is at times scared, is extremely concerned at what's happening to it. So the Constitution and its values are in the background for the community at the moment. Since 2014 till today, and progressively after 2017-18, we have had a series of incidents, laws, administrative actions that have gone against the interests of the Muslims,
causing a sense of concern, fear, and lack of faith in the system around them. They feel bereft of patronage. They feel that they are leaderless in this large community, and they have felt that they have been living in among very secular Hindu brethren. But the large section of middle class, which is indeed secular, is today silent. Are they silent for fear? Because there is a small number of people there who are gloating कि इनको सबक सिखा दिया. And that I don't think was ever intended in India by anyone. Never in the constitution, never when we joined service. I served this government for 44 years. And we never imagined that we would come to a day when the superintendents of police or the district commissioners would be so extremely biased that the poor man on the street has lost complete faith. उसकी वजह ये है कि जब वो आपको देखते हैं, उनकी नज़रिया is your identity as a Muslim and not as a citizen. इसलिए मैंने ये सवाल उठाया था. Sir, I am the other already. The question of othering, and the signal is quite clear that you will be made into a second-class citizen as it comes. It may not be de jure, but certainly de facto, you will be made to feel as a second-class Under citizen. the Constitution लगता है कि वो सोचते हैं कि आप तो मुसलमान हैं, ये भूल गए तो आप एक नागरिक हैं, एक सिटीजन हैं. आशफा जी, आपका क्या ख्याल है? No, I think I agree with these two gentlemen, but I'll go a little further. I would say that a life of an Indian Muslim right now is a life without dignity, without limited rights, and with minimum freedom. I've just come back from Uttarakhand, and this is a small state. You must have heard a lot about what the BJP and their associates have done to the state of Uttar Pradesh, but this is a small state, not politically so relevant, so not many people talk about it. I've just spent 3 days in Uttarakhand, and I've just come back from there. BJP has got 2 consecutive terms there. It's double engine sarkar at the center also, in the state also. The government of Uttarakhand, the chief minister, सीना ठोक के वो कहते हैं कि we have demolished more than 300 shrines and mazars. They have not done any of the work that was promised even at the time of the creation of the state of Uttarakhand. But now BJP is set to win this state again. So in 2014, 2019, and now 2024, all 3 terms, they are going to get all 5 seats. Why? With no development, no job creation, price rise, you see this whole conflict of, plains and hills. तो आपके हिसाब से वो 5 सीटें जीत रहे हैं? At least 4. अच्छा. So, and why are they winning this? Because there is a whole constituency of people which is cheering for the chief minister when he issues shoot at sight orders. He demolishes a mosque, demolishes a madrasa, and orders shoot at sight illegal orders. He orders issues shoot at sight orders. Half a dozen Muslims are killed. And I, as a reporter, when I entered there, I entered like a thief. That this was not my right to go to a place where people have been So wronged. you don't feel like आप एक citizen हैं? Legitimately, आप ये सोचिए कि my right of a citizen and also as a journalist. So for me, with my Muslim identity, if I talk about myself, it's highly unsafe for me to go out as a public figure whose face, I used to think that my face was my greatest power. It has become my greatest vulnerability because people recognize me. So it's highly unsafe for someone like me to go in a crowd. It's impossible for me to go to a public rally addressed by, let's say, Amit Shah or Narendra Modi, go as a journalist and cover it. So this is what it is. मुझे डर नहीं लगता, मुझे threat feel होता है. Feel होता है. और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पर उनके दीवाने followers से. Because someone like me, I have been established as a face which is anti-national, anti-Modi, and anti-Hindu. So when you say anti-Modi, then you say anti-Hindu, and you say anti-India. बात हो गई ना, but why No, should I'm the saying- administration जो संस्था जो हमारी administration शासन है वो आपको इस नजरिए से क्यों देखता है? शासन नहीं देखेगा, लेकिन शासन तो बाद में इफेक्ट में आएगा. उससे पहले I will already be attacked. And शासन में भी ये सोचिए कि people like you also ask me if I'm attacked online. I don't even care about online world anymore because online has so swiftly shifted to offline threats that I'm just one tweet away, one news report away from going to jail.
So, someone like me is triply marginalized because of being a Muslim, because of being a woman, and also being a journalist who asks questions of the तीनों चीजें government. मतलब। जी हाँ। तो आपको तो कभी भय नहीं लगा, यू बीन इन अ प्रिविलेज पोजीशन ऑलवेज, बट आपके जो जानकार लोगों से नहीं, आई थिंक सर कि हमारे देश में ज़रा गुरु और गोविंद को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो टीचर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। मतलब मैं तो इतनी जगह पढ़ाता आपके हूँ, स्टूडेंट्स अलीगढ़ lectures मुस्लिम देते हैं। यूनिवर्सिटी से? नहीं, अलीगढ़ के भी नहीं, अलीगढ़ के बाहर के जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो शायद आदर सत्कार सम्मान में अलीगढ़ से 2-4 कदम आगे हैं। अच्छा। तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं है जैसा आरफा बता रही हैं, लेकिन ये कि अगर देश में जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि मासेस जो हैं, जो एक क्राउड है, भीड़ है, वो एक मॉब मेंटालिटी से उसका माइक छीनेगा या उसे चेस करेगा जैसे कई जर्नलिस्ट को हुआ, तो वो ऐसा प्रश्न है जिस पे मैं समझता हूं कि वो अल्पसंख्यक या जर्नलिस्ट का इशू नहीं है, वो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक माइनॉरिटी का मुद्दा नहीं है। क्योंकि यहाँ 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं। नहीं, 20 करोड़ को छोड़ दीजिए, 140 करोड़ का मुद्दा है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोगों को हेल्प करती है टू मेक चॉइस। वो चॉइस करेंगे जब तक उनके सामने अच्छे तरीके से सारे ऑप्शंस ना रखे जाए, वो काम जर्नलिस्ट नहीं, का है। फैजान साहब, ये तो बिल्कुल सही है, आपकी बात दुरुस्त है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, बट मैं यहाँ कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है बिकॉज फॉर द क्रिएशन ऑफ हिंदू राष्ट्र दे नीड एनिमीज एंड दे नीड फेसेस फॉर इट. So there will be some politicians, there will be some journalists, there will be some lawyers who will be portrayed as enemies of the nation. कि देश की विकास में, विश्व गुरु बनने में ये लोग बाधा आ रहे हैं, तो ये 10 चेहरे हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे को एक दुश्मन की तरह प्रोजेक्ट किया जाए तो आपसे जो आपका जर्नलिस्टिक प्रोटेक्शन, लाइक आई एम सपोज टू बी प्रोटेक्टेड एज अ जर्नलिस्ट टू, नॉट जस्ट एज अ सिटीजन, माई राइट टू फ्री स्पीच. सो इवन माई प्रोटेक्शन एज अ जर्नलिस्ट, that cover is also blown. That protection has also been taken away from me because one of the problems is because of my religious identity. So I am a woman, a Muslim, a journalist who asks questions. So therefore identity of your religion, मतलब कि आपका जो धर्म है उसकी identity is more important than your identity as a citizen. ऐसा ही लगता है. Sir, why are we concerned only with journalists and a teacher? Look at the ordinary man. If you are traveling in a second-class compartment, you have a beard and you have a skull cap. Then what food will you eat in that compartment? Because if you order a non-vegetarian meal, you are under threat. It's as serious as that. Nice. Or how do you think a young man feels traveling from Prayagraj to New Delhi in a skull cap with a beard, and he's 25 years old, and he has a wife with him who has covered her hair and 2 young children, Right. and then suddenly he wants to pray. You know, this has carried on so much, this nonsense about praying on the streets. I want to clear that, sir. The Muslims believe in congregational prayer. Now, Correct. that congregational prayer happens only on Fridays, Right. right? The prayer lasts only 20 minutes. You can't build new mosques now. Which state ruled by the BJP will allow you to build a mosque? None. You can build a sharab khana, but not a mosque today. So therefore, with the increasing population, naturally people spill over. Okay? It's only on Friday, only for 20 minutes. And any sensible SHO can control the traffic at that time. But this hawa in the country, that roads are being blocked for prayer. You know, you speak a lie 1,000 times and the country कभी starts कभी believing. दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, दिखाते हैं कि कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है. So the country believes it today, sir. The middle class, which is secular, believes कि ये तो nuisance करते हैं. These are issues which have to be thought through, and nobody is speaking of it today because it helps a certain agenda, it helps a certain narrative, and that narrative gains traction amongst the majority of people. इनफैक्ट हमारे इस डिस्कशन को भी ये कहा जाएगा, सम ऑफ माई लिबरल फ्रेंड्स वुड से कि हम इस पर रिएक्शन दे के पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द एम क्वेश्चन, द एम फॉर मुस्लिम्स, इवन इफ मुस्लिम्स ब्रीड, दे पोलराइज, दे आर ऑलवेज काइंड ऑफ inciting and provoking Hindus to vote for Mr. Modi. So the vulnerability is such that it may be a Shah Rukh Khan, it may be an Arfa Khanam Sherwani or Faizan Mustafa or a rickshaw puller.
मे बी द डिग्री एंड लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड डेंजर मे बी डिफरेंट। जैसे शाहरुख खान के बेटे को जेल जाना पड़ता है, मुझे मेरी रिपोर्टिंग से रोका जाता है, फैज़ान साहब अपनी कहानी खुद कहेंगे, रिक्शा पुलर को पुलिस वाला उठा के और पहले 2 लात मारता था, आज 6 लात मारता है, पहले भी मारता था कांग्रेस के टाइम पे। सिर्फ ये कि वो 2 लातें 6 लातें बन चुकी हैं और हो सकता है मुकदमा भी दर्ज उसके ऊपर, किसी भी बात के लिए हो सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी और साथ साथ जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर एंड इन सेवरल ऑफ द स्टेट्स जो अभी 300 नहीं 500 भी सीटें आ जाएंगी अगर उनकी, उसमें भी एक मुसलमान नहीं मिलेगा आपको। उसकी बात को हम करेंगे जी हाँ, तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन का ये एक लेवल है, सोशल मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक अभी तो मार्जिनलाइजेशन। चर्चा होती है, मैंने कई बार पढ़ा है, बड़े बड़े लोगों की स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि जी मुसलमानों की संख्या है वो कितनी गति से बढ़ रही है। Yeah. ठीक है ना, और असलियत ये है कि सबसे मुसलमान steepest उनमें हाँ, fall मतलब है। कि सबसे Fertility फ्लॉ है। 1998-99 में इट वाज 3.76% फर्टिलिटी रेट और आज वो 2.3% हो गया है। बिल्कुल आ गया रिप्लेसमेंट और लेवल पे ऑलमोस्ट और हिंदुओं का है 1.92%, तो अंतर कोई है नहीं। लेकिन फिर भी एक अफवाह फैलाई जाती है कि देखिए बड़ी गति से उनकी संख्या बढ़ जो रही है, मिथ्स को प्रमोट किया जाता उसको है, प्रमोट The किया जाता है। फिर lies लोग उसे spoken- यकीन कर लेते हैं। A lie spoken 1,000 times has indeed become the truth now. आपने जुमे की नमाज का जिक्र किया, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए राइट विंग जो सोसाइटीज़ हैं, खासकर RWAs, उन्हीं कांग्रेगेशनल जो प्रेयर्स होती हैं उनको एक थ्रेट की तरह इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक साथ अगर एक साथ 300 लोग या 500 लोग, कितने लोग जमा हो जाएंगे, या मान लेते हैं ईद की नमाज है, उससे बड़ा कोई थ्रेटनिंग पिक्चर नहीं हो सकता है कि इतने एक साथ इतने लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए आप हमें, ये तो बड़ी दुख की बात है और आई एम लिटिल वरीड अबाउट ऑल्सो कि आपकी कम्युनिटी से कोई ऐसा लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहा Sir, जो that's a very interesting question, and we are all struggling to answer that for years and years and years. The better off Muslims had left for Pakistan in यही तो 1947, मैं number one. करेक्ट। Some middle class was left behind, seeing reduction of opportunities. A lot of their children went away. So the leaders that have emerged, the people who have been elected, who have been emerged, are coming up through muscle power or money power. राइट। They lack the intellectual fiber to be a true leader. And therefore, we have produced no leaders. I think in North India we had Dr. Faridi, but post Maulana Azad or Hafiz नहीं मैंने तो Ibrahim, मैं ever since I was born there is no मुझे one. तो I cannot point There's out to no- any leader in the Muslim community who actually stands for the In values. fact, if there is a problem, if there is a communal riot, the Muslims will go to a Hindu leader. If you remember, sir, 1968, when there was a major riot in Aligarh, the Muslims came to Mr. Bahuna. Right. कि कुछ करिए, and Bahuna ji took them to Morarji Bhai, and then Ashwini Kumar was sent off to Aligarh as DGP. Now, there is no one. What is the सर ये reason? मैं इसमें Reason ऐड करना बताइए, चाहता ज़रा हूँ। बताओ मैं ज़रा। 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो नजीब सर सही कह रहे हैं कि जो हमारे लिबरल प्रोजेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत ही ये अच्छी बात है कि मुसलमानों ने कभी मुसलमानों को अपना लीडर नहीं माना। उनके लीडर मुलायम सिंह यादव या लालू यादव या बहुगुना के एग्जाम्पल Correct. या मिसेस गांधी या नेहरू या इवन वाजपेयी जी, ये सब रहे हैं, विच इज़ गुड। दूसरी चीज़ सर ये है कि जो फ्रस्ट्रेशन है मुझ जैसे आदमी का, वो ये कि जो कुछ हमारे लीडर्स इमर्ज भी हुए, उन्होंने भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जैसे लेट शहाबुद्दीन साहब, अब ये तो एक फॉरेन सर्विस का जी रिटायर्ड हाँ, ऑफिसर, जी हाँ। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एक्सपोजर, Correct. लेकिन इन्होंने बाबरी मस्जिद का इशू उठा दिया और फिर किशनगंज से जाके ये इलेक्शन लड़े। तो मुस्लिम लीडरशिप में जो इनलाइटेंड लिबरल लीडरशिप इमर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और मुझे ये लगता है कि मुसलमान मासेस को अभी भी कोई लीडर जो ज़रा कुरान की 2-4 वर्सेस पढ़े, अल्लामा इकबाल के 2-4 आशार शेर पढ़ दे, बस वो तालियां बज जाती हैं। तो सेंसिबल लीडरशिप जो है वो हुई नहीं, और हमेशा लीडर बनाने में भी सरकार का रोल रहता है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, मैं एक मिनट सर, बहुत लोग कहते हैं कि जिन्ना तो प्रैक्टिस छोड़ के चले गए थे, गांधी जी बार बार उन्हें ले आते थे और लीडर बनाते थे उन्हें। तो गवर्नमेंट को भी इनकरेज करना चाहिए इनलाइटेंड लीडरशिप को। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जब बात करती हैं मुसलमानों के इशू पे,
तो लंबी दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले मौलाना, खानकाहों के सज्जादा नशीन, कभी भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से, लिबरल से किसी गवर्नमेंट ने बात नहीं की। वो कितने हैं I लिटरेचर think there लिबरल? is a problem in what he's saying. But Please go ahead, no, then I will I'll add. say something, sir. इन्होंने कहा कि शाहबुद्दीन किशनगंज से लड़े। वो लड़ते कहाँ से? Where can a Muslim get elected unless there is 40%, 50% Muslim vote there? Even Maulana Azad fought from Rampur. नहीं भाई, वो तो खैर अलग बात है कि किशनगंज से लड़ी, लेकिन वो जो पब्लिक आर्टिकुलेशन हाँ, थी वो भी थोड़ा मतलब वो तो बिल्कुल गड़बड़ था। हाँ, ये तो तो- बिल्कुल गड़बड़। नहीं, बट यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्या किस तरह के एनलाइटनमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं जब मुसलमान आज की तारीख में एग्जिस्टेंशियल इश्यूज से दो चार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। जब वो रोटी, कपड़ा, मकान, नमाज पढ़ने की आज़ादी, कुरान पढ़ने की आज़ादी, कॉलेज में एडमिशन, अगर उसके ये मसाइल हल हो गए होते और तब हम एक डेवलपमेंट लैंग्वेज की बात करते कि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, जब यहाँ अभी भी इशू एग्जिस्टेंशियल हैं तो लैंग्वेज जो लीडर की होगी वो भी एग्जिस्टेंशियल होगी। उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ कमी रही है मुस्लिम कम्युनिटी में। अगर आप केरला में चले जाओ तो दैट मैं- रिप्रेजेंट्स कि केरला की आवाम कैसी है और वहाँ के मसाइल कैसे हैं। मैं बता रहा हूँ, केरला में आप चले जाओ, इतनी ज्यादा एम्फेसिस ऑन एजुकेशन, Yes. नॉर्थ और साउथ का डिवाइड है। बिल्कुल बहुत है, भारी definitely। डिवाइड है। हाँ, और वो उस किस्म की इन्वेस्टमेंट मुस्लिम्स ने नॉर्थ में शिक्षा में नॉर्थ में नहीं नहीं की। की, नहीं की, बिल्कुल और नहीं। सिविल और सोसाइटी मैं मूवमेंट वीक समझता रहा। हूँ कि आप लोग इसके जिम्मेदार हैं, द मुस्लिम कम्युनिटी। और उसका वजह यह है, मैं समझता हूँ कि जो आपने सही कहा कि जो पढ़े लिखे अमीर मुसलमान थे पार्टीशन में उधर चले गए और बाकी जो वंचित लोग थे तो वो यहाँ रह गए। उनके पास कोई साधन नहीं था, तो वो कभी मेन स्ट्रीम में आए ही नहीं। और ये सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी कम्युनिटी हो उसको मेन स्ट्रीम में लाना उनकी जिम्मेदारी है। वो कभी उन्होंने कर्तव्य निभाया ही नहीं। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड रही है, ना उनके पास साधन था ना सरकार ने कुछ किया। और आज के दिन अगर आप देखो, और मैं क्योंकि एजुकेशन में रहा, तो जो हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशो मुस्लिम्स का है, बच्चों का है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, इट इज़ वर्स देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Yes, yes. डेफिनेटली। इट इज़ वर्स देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उसका मतलब ये होता है कि वो कभी उसकी वर्टिकल इम्प्रूवमेंट होती ही नहीं। बट उसकी एक वजह भी है सर। द वजह इज अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम कि मुझे पढ़ लिख के क्या मिलेगा। तो क्या आज आप अपना घर ही अगर रिपेयर कराएंगे तो आपका बढ़ई मुसलमान, आपका प्लम्बर मुसलमान है, आपका गार्डनर मुसलमान है, आपका ये लाइट लगाने वाला मुसलमान है, वो ये कहता है कि मैं रोजी रोटी अपनी कमा रहा हूँ और मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ये नौकरी नहीं देंगे, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इट्स अ कनंड्रम। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, वो हौसला पैदा करना कि भाई नौकरी Absolutely. मिलेगी। और पढ़ाना भी सरकार की अब जिम्मेदारी वो है, भी लेट्स नॉट सरकारी फॉरगेट है। दैट। हाँ, वो तो यही ना मैं कह रहा, डबल एज स्वॉर्ड है। सरकार ने तवज्जो नहीं दी। और अगर आज की हम पॉलिटिक्स का जिक्र करें, अगर आज की पॉलिटिक्स में आपको नरेंद्र मोदी चाहिए, आदित्यनाथ चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा चाहिए, तो उधर भी आपको असदुद्दीन ओवैसी ही मिलेंगे। क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक तरफ जो हिंदू मेजॉरिटी है वो चूज कर रही है आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा को, और उधर लगता है कि क्या मौलाना आज़ाद आएंगे। तो जो लैंग्वेज है इस वक्त वो एग्जिस्टेंशियल ही है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ उसके रिएक्शन के तौर पे भी मुस्लिम कंजर्वेटिज्म ही आपको नजर आएगा। तो आई थिंक ये भी, और आपकी बात से मैं थोड़ा सा पार्टली अग्री करती हूँ कि लीडरशिप भी वही उभर कर आई पिछले 50 या 75 साल में, विच वॉज अलाउड, एंड पार्ट ऑफ दिस हैज टू बी ब्लेम्ड ऑन द कांग्रेस पार्टी कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर में मुस्लिम लीडरशिप को उभरने दिया गया। ऐसा नहीं था कि ये बहुत आसान था कि जो भी चाहता लीडर बन जाता। नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्रयास किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन उसको गलत तरीके से दिया गया। सर, जो भी उसे स्कीम्स appeasement बनाई क्या गई, है? स्कीम्स The word- बनाई गई, तो स्कीम्स में कहा गया ये तो अपीजमेंट है। लेकिन सर Sir, पॉलिटिकल affirmative करेज action has और been पॉलिटिकल forgotten. करेज भी तो It is दिखाना replaced पड़ेगा। by वो appeasement. कह रहे ये तो It's अपीजमेंट है। ridiculous. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपीजमेंट का मतलब क्या है? सर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये शब्द ही नहीं है, और सिटीजन्स की सारी नीड्स, खास तौर से एजुकेशनल नीड्स को कैटर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो राइट टू एजुकेशन आप ही ने पास कराया था सर, बिल्कुल, आप तो उस वक्त थे। क्वेश्चन ये है कि जब सरकार के पास अगर रिसोर्सेज नहीं है और वो ना करे, तो हमारे संविधान ने आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को ये राइट दे दिया कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस बनाएं,
क्योंकि रिजर्वेशन दे नहीं सकते थे, हाँ, इसलिए दे नहीं सकते थे। लेकिन ये कि हम उसको भी अपीजमेंट कहते हैं, आर्टिकल 30 के इंस्टीट्यूशंस के प्रोटेक्शन को। मैं ये समझता हूं कि जो बीजेपी का ओरिजिनल स्लोगन था, हमको कहना चाहिए कि बीजेपी उस पे आए। उनका था जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। तो वो किसी का ना करें अपीजमेंट और जस्टिस कर दें, ये हो जाएगा तो मुसलमान खूब खुश हो जाएंगे। करते तो हैं, वो अपीजमेंट तो करते हैं। नहीं, मगर वो तो उनका That's not स्लोगन right. था अपीजमेंट ऑफ नन, तो उन्हें किसी का अपीजमेंट नहीं करना और जस्टिस कर दें सब। नहीं, जहाँ चाहते हैं वहाँ अपीजमेंट तो करते हैं, जहाँ नहीं तो चाहते नहीं करते। अब अपने स्लोगन के अगेंस्ट जाएंगे फिर। No, sir, that's not right. Appeasement for none is not correct. There has to be affirmative action. Definitely. There has But to be affirmative action hand-holding. is not appeasement. There has to be वो तो right है। hand-holding for the minorities because they are coming from I way think back. what he is saying is that is a fundamental duty of the state Yes. that cannot be called appeasement. नहीं सर, That ऐसा is है, अब सुप्रीम कोर्ट का भी responsible. जूरिस्प्रूडेंस सर ये है कि जो अफर्मेटिव एक्शन है 15(4), 16(4), That's अब not तो 5 और appeasement. 6 हो गए हैं, ये एक्सेप्शन नहीं है 1 के। Correct, दे correct. आर एक्सटेंशन ऑफ राइट टू That's इक्वालिटी। correct, that's सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो हैव्स नॉट हैं उनको ऊपर लाना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। पुशअप करके उन्हें ऊपर लाना है। सो इट इज इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी जो है वो तो रिजेक्ट कर दी हमने, उसमें बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होता है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी में आपको स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल राइट्स, अफर्मेटिव एक्शन करना ही करना। अभी मैं आपको अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग इतने बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, और अगर सरकार कहे कि ठीक है मुस्लिम वुमेन के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए हम एक सेपरेट स्कूल खोलेंगे, तो इससे इतना विरोध होगा, करने नहीं देगा। विरोध आपने होगा। मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया बंद कर sir. दी And Arifa, जरीमाना। the interesting thing sir is that people misunderstand madrasas today. In the last 10 years madrasas have changed their form. That's correct. They They are teach science, teaching they teach mathematics, they are science. teaching ये तो English, they आप are लोगों teaching की physics. स्कीम थी मदरसा मदरसा तो modernization। सिर्फ नाम है, बिल्कुल। मदरसा तो सिर्फ नाम। Of course उसमें they मैथ्स teach के what टीचर is की called सैलरी दीनी सरकार तालीम। देती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देनी And भी also, I चाहिए। would like to draw your attention back to political marginalization. I think it's very important because right now we are in the process of electing our next leader, or maybe the same leader again. We don't know, we are not sure of that. But I think we'll also have to look at, when we talk about political marginalization, BJP making a Muslim Mukt Bharat, what is opposition doing right now? Right now, from political marginalization, this is political disappearance of Muslims. Opposition के leaders दाढ़ी टोपी वालों को 1 किलोमीटर दूर रखना चाहते हैं कि आप मेरे आसपास भी मत दिख जाइए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखिए कि इस कदर, मतलब ये जुल्म है कि पूरे तरीके से जहाँ 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। इतना डिप्रेशन, इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना निराशा का माहौल है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आप हर जगह देख लीजिए कि हर जगह इस नाम पर कि हिंदू खतरे में है, या हिंदू प्रोवोक हो जाएगा, या पोलराइजेशन हो जाएगा, इस नाम पर लगातार ऑपोजिशन के जरिए सप्रेस किया जा रहा है मुस्लिम आपने रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिक्स की बात की, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उत्तराखंड में जो आपने मुझे बताया, जो हमें जो खबरें मिल रही हैं, इतनी बुरी हालत नहीं है। हमें तो खबरें मिल रही हैं कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक काम चल रहा है, राजस्थान में अच्छी सीटें जीती जाएंगी। पहले 28 की 28 होने के पास थी, तो आई डोंट थिंक। अच्छी बात है। देखिए, पॉलिटिकल जीत हार के अलावा मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान क्या है। उसका पॉलिटिकल प्लान तो सब जानते हैं। नहीं, प्लान ये है कि देखिए, मैंने आपको कोई विकास नहीं दिया, लेकिन इन मुसलमानों को मैंने सजा दी है, ये रो रहे हैं, परेशान हैं, इनके लोग मारे गए हैं, 100 लोग जेल में हैं। making sir is that eliminate them from the political scenario. Don't give them seats. Yes. When they are not in parliament, they are eliminated. They are not in the assemblies, they are eliminated. Then you take away the senior jobs. You don't give them positions in government. And Right. finally, it's the status of a second-class citizen. Right. That is the ultimate intent. And that's why I said, you don't have to change the constitution as they're saying. That's a very silly statement. Right. But de facto, Yes. you have managed it. Now there it is. Now since you talked about political representation, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं. Right from 1962, when the representation of Muslims was 4.11%, in the 7th Lok Sabha 80-84 it became 8.33%. In 1996-98 it became 4.85%, 88%. And in 2014 to 19 it went back to 4.72%. तो आपकी देखिए 16-17% आपकी पॉपुलेशन है और रिप्रेजेंटेशन आपकी 4% है। और अगर आप असेंबलीज़ में देखिए, मध्य प्रदेश में 230 मेंबर की असेंबली में 2 मुसलमान हैं।
राजस्थान में 200 की असेंबली में 6 मुसलमान हैं, गुजरात पे तेलंगाना के उन 119 की असेंबली में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 मेंबर्स में कोई मुसलमान नहीं है, और कर्नाटका में 9 हैं और इन अ लार्ज असेंबली, और 403 है उत्तर प्रदेश में, वहाँ लगभग 8.4%। मगर सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हाउस में हो उससे मुसलमानों का कोई बहुत हित नहीं होगा। जब मुजफ्फरनगर रॉयट हुआ तो 72 एमएलए थे 420-22 के हाउस में। ये इशू नहीं है सर मेन कि वहाँ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिवनेस अच्छा लीडर हो, अच्छा सेकुलर हिंदू रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों के लिए एक मुसलमान डोसाइल एमएलए या एमपी से बेटर होगा। प्रॉब्लम सर देश की है मेन कि हम अपने जो प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो अच्छे लोग चुन ही नहीं रहे हैं। वो तो आपने ठीक बात कही, लेकिन अब विमेंस रिप्रेजेंटेशन हम मांगते हैं ना। लेट्स जस्ट टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। विमेन रिप्रेजेंटेशन हम मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? कि जब वो विमेन पार्लियामेंट में असेंबलीज में आएंगी तो निश्चित रूप पे उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। Exactly. जो अब आप कहते हो कि नहीं उसका कोई मायना नहीं, उसका मायना है, या same मैं आपको उसका बता मायना दूं। है, लेकिन प्रॉब्लम जो अरफा ने कहा वो सही है कि चुने कहाँ से जाएंगे, जो आप बिल्कुल। जब चुने ही नहीं जाएंगे तो वो एम्पावरमेंट ही नहीं होगी, उनका वॉइस ही नहीं सुना जाएगा। मैं न्यूज़ रूम तो का फिर एग्जांपल आपको बदलाव देना लाएगा चाहती हूँ। कौन? बस चुने नहीं जाएंगे सर, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलेगा। न्यूज़ रूम का एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। न्यूज़ रूम में भी हम इसी क्राइसिस से हमेशा जूझते रहते हैं कि क्या औरतें होनी चाहिए या इस तरह के मेल एडिटर्स होने चाहिए जो जेंडर जस्टिस में यकीन रखते हो। आप यकीन जानिए, अगर पूरे बोर्ड रूम में of a dozen people sitting there, if there is just one woman, the whole language changes in that room. This is what representation means. Yeah, absolutely. So we do need good leaders. We need good Hindu leaders, good Muslim leaders, good Christian leaders. We need leaders to represent. We need Also good men. Good men. Good and men. women. अच्छे आदमी तो चाहिए। हमारी पार्टी पॉलिटिक्स में आरफा वहां पे भी विप इशू हो जाती जी। है। जितने एमपी एमएलए हैं उन्हें जो वोट करना है, जो बोलेंगे हाउस में, वो जो पार्टी लीडरशिप है वो डिसाइड फैजान करेगी। साहब, आपको मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ दिल्ली रायट्स का। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। यहाँ ऑपोजिशन की बात करते हैं, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए लोगों का, तो आई कैन बी एज अनपॉपुलर एज आई वांट टू बी। आम आदमी पार्टी को जितना खुल के मुसलमानों ने वोट दिया, 2020 के राइट्स में आप देखिए, सिर्फ एक अमानतुल्ला, उनके दूसरे एक काउंसलर जो भी जेल में बैठे हुए, सिर्फ मुस्लिम लीडर्स थे, 1, 2 या 1.5 लीडर्स जो हर तरफ घूम रहे थे और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर वहाँ जेल बैठे में हुए अभी थे। वो? जी हाँ, वो जेल में है। वो अभी शाम को उनको जेल भी ले मैं गए। उनका वकील भी हूँ। जी हाँ। तो वो चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, सारे उनके मिनिस्टर्स उन्हीं मुसलमानों से किस तरह से उन्होंने आंखें फेर ली जिन्होंने कुछ ही महीने पहले उनको जिता के चीफ मिनिस्टर बनाया था। अब आप ये सोचिए कि अगर 1 एमएलए की जगह, 1.5 एमएलए की जगह 10 एमएलए होते तो शायद उनमें से 5 तो कोई काम कर रहे होते। और ये 2020 की बात कर रही हैं सर। शी वाज देयर ऑन द सेम डे, आई वाज आल्सो देयर, एंड वी वेंट टू अ कैंप जहाँ पर ये ज़्यादातर मुसलमान वहाँ पड़े हुए थे। द कैंप रिप्रेजेंटेड लिटिल बेटर देन अ गाज़ा एरिया। इतनी पिटाई हुई थी, लोगों की टांग कटी हुई थी, हाथ कटी हुई थी, एंड द इंतज़ाम वाज सच, देयर वाज नो कोल्ड वाटर, देयर वाज वन स्मॉल टेंट विद मेडिसिन्स, और वहाँ वक्फ बोर्ड का एक जूनियर ऑफिसर खड़ा था कि मुझे ये नहीं मालूम मैं दवाएं किसको क्या दूँ। It was absolutely hideous. You couldn't believe. And that 2020 जिसकी आप बात कर रही हैं, this is certainly not the Delhi police that I knew when I was Lieutenant Governor. This was not the Delhi police which has put cases on people, and they are still struggling. You were also Vice Chancellor of Jamia. Yes, sir. And then you became LG from 2013 That's to right. 16. Yes. And what did you feel about the student community and how they were sort of looking at all this? This is the interesting thing. Jamia is the cesspool of the most secular group of people, teachers, students. वहाँ the Muslims and Hindus live together, eat together, celebrate together, have boyfriends and girlfriends together. वहाँ कोई लव वो जिहाद तो लव जहाद हो गया। हाँ, वहाँ कोई इसकी बात नहीं होती। अच्छा। They live an open life, and there are teachers. There are teachers with beards, there are teachers with sherwanis who can't impose any rigidity. So I am devastated at the way the students were treated by Delhi police when they barged into the library and broke their hands and feet. वो दृश्य देखे हमने। ये impossible है to even conceptualize for me. And truly speaking, sir, it's the shame on Jamia administration that allowed that to happen. It should not have happened. 2 मुद्दे मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं आई वॉज मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो हमारे लोग जो मेरी कंस्टिट्यूंसी चांदनी चौक थी, लगभग
संख्या मुसलमानों की वहाँ बहुत है। तो हमारा ये जो रूल बना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, कि अगर आपकी 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे कोई स्कूल होगा तो आपको एडमिशन मिलेगी। तो जो चांदनी चौक में रहता है और वहाँ तो एक ही स्कूल है, सेंट जेवियर्स, तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी एडमिशन मॉडर्न स्कूल में हो, बट वो तो हो ही नहीं सकती। तो मेरे पास आते थे, कहते थे कि साहब एडमिशन हम कहाँ लें, पहली बात है। दूसरी, देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ मुसलमानों को जगह नहीं मिलती एज अ टेनेंट। उसका नतीजा ये होता है कि दे बिकम गेटोइज्ड, एक ही जगह रहने लगते हैं, एक ही रहने लगते हैं, एक बस्ती बन जाती है। उससे फिर ये और प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और एक तरह की जहनियत भी पैदा होती है, जहनियत भी जिसकी पैदा तरफ हो फैजान जाती साहब है। इशारा तो कर रहे रिजल्ट थे। ये है कि हमारा जो द फंक्शनल सिस्टम ऐसा है इस देश का और एडमिनिस्ट्रेशन का, कि किसी तरीके से जो फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने सोचा था वो तो सब बिखर गया, और ऐसा माहौल बन रहा है जहां वी आर लुकिंग एट पीपल नॉट एज सिटीजन्स, जो मैंने शुरुआत की। सर उसी में मेरी प्रॉब्लम यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे लिबरल इनलाइटेंड आइडियाज इनकॉर्पोरेट किए। कांग्रेस का फेलियर यह है कि उन्होंने सोचा कि पूरे देश ने ये इंटरनलाइज कर दिए। जितना उन आइडियाज को लोगों में इनकलकेट करने का एफर्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जितना और लोगों ने एफर्ट किया सेग्रीगेशन करने का या एक्सक्लूड करने का या अदरिंग करने का, उतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, क्योंकि आज भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि साहब इक्वालिटी का मतलब ये है कि सब बराबर हैं, ये कोई आज भी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। आज भी हम इंडिविजुअलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो जो संविधान के मूल्य थे उनको लोगों को समझाना कि ये अच्छी चीजें हैं, उसके लिए काम नहीं किया हमने। मतलब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पहली बार संविधान पब्लिक डिस्कोर्स में लाई तो वो तो शाहीन बाग की लड़कियां थी कि उन्होंने इतनी प्रीएम्बल पढ़ी कि सारे देश में प्रीएम्बल पढ़ी जाने लगी है। और ये जो गेटोइजेशन कई तरीके से हो रहा है। आप कहते हो कि आप बीफ खाते हो, अब नॉर्थ ईस्ट में सब लोग खाते हैं, आप मीट खाते हो, दुकानें बंद कर दो, दुकानें बेचना बंद कर दो, तो ये तो एक बड़ा सीरियस मामला हो गया। फिर आप कहते हैं आजकल कोई बीफ खाता नहीं है हिंदुस्तान में, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन, वहाँ तो भाई नॉर्थ ईस्ट में तो अलग क्रिश्चियंस बात खाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी काउ बेल्ट में कोई नहीं खाता, वो बेचना भी नहीं चाहता। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी। तो अगर आप ऐसे कपड़े से पहचानो, अभी आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करो जैसे लगे कि यू आर द अदर, तो अगर सरकार ही ऐसे करने लगे तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग डरेंगे। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनका हौसला पैदा नहीं होगा कि आगे कैसे बढ़े। नहीं, एंड इसलिए सिबल साहब, जब हम पहले लैंग्वेज यूज किया करते थे कि हिंदू मुस्लिम राइट्स, देयर नो हिंदू मुस्लिम राइट्स नाउ। दिस इज ओपन परसिक्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स बाय द स्टेट using all its machinery and tools. So I think we'll also have to correct our language when we start debating an issue as sensitive as this. I try to do that in my program especially, that there is no Hindu-Muslim rights. Like in Haldwani, there was no Hindu-Muslim rights. In Uttar Pradesh, there are no Hindu-Muslim rights. It's government with its police force against the Muslims. Also, sir, if there is a riot, in the olden days it would be localized. Muradabad mein hui to Delhi Musliman would not feel a fear. Yeah, Meerut would not feel a fear. Today, if there's a riot anywhere, Muslims across the India get concerned. You're right. This is a issue which again is coming from the mind that you are terrorizing a community. Instead of giving confidence to 20% or 18% of your people, you are taking away their confidence. And that's going to be fatal. That's because when we talk of educating them, when we talk of giving them jobs and making them do businesses, they must have confidence and hand-holding from the majority community, from the government, that we are there to help you, and that's where affirmative action comes in. Right. But here, you want to take away the minority status of Aligarh Muslim University, you abolish the Maulana Azad Foundation, next will be Jamia. I mean, where are we going? That's right. सर पहले रॉयट अर्बन सेंटर्स में होते थे, अब वो रूरल एरियाज में होने लगे, इसलिए वो फ्रेटर्निटी का जो प्रोजेक्ट है वो अंडर थ्रेट है। अब देखिए उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू ही कर रहे हैं। अब यूसीसी हर जगह, वो एक माहौल बनाने की बात है ना, ये तो खतरनाक है। और मैं और आंकड़े कुछ देख रहा था कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में जो एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड का,
It is the lowest. है ही नहीं पैसे सर, तो लोएस्ट तो हो गई। मैं देख रहा हूँ यहाँ, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं कि एवरेज per capita expenditure amongst Muslims is the lowest as opposed to Hindus, others, Christians and Sikhs. वो सारा खाने पे चला जाता है, उनके पास एजुकेशन पैसे ही और हेल्थ के लिए है ही नहीं। Average household assets are the lowest, expenditure lowest, assets lowest, employment lowest. So what will happen? What will happen to our country? सर 40-45 साल का मर्द, मुसलमान मर्द is a broken man. His health is blown because he has worked so hard between 25 and 40 as a labor, and his confidence is broken that by 45 he has children to look after. He has a wife and a mother and a father to look after, but physically he's incapable. That's the truth. Maybe the Dalits felt that years and years ago. The Dalits today are much better off, again thanks to affirmative action. Right, right. वो the affirmative आपने action यहाँ तो हो नहीं जिक्र किया सकता। इन आंकड़ों का, मैं कहती हूँ ये आंकड़े मुसलमानों के लिए कम हैं और देश के राष्ट्रवादी हिंदू के लिए खासकर ज़्यादा हैं। वो राष्ट्रवादी हिंदू जो सोच रहा है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, मैं उसको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक ऐसे जिस्म का, एक ऐसे शरीर का जिसका अगर एक हाथ या एक कान खराब है तो क्या आप उस जिस्म को तंदुरुस्त कह सकते हैं? ये उसी तरीके से है कि अगर 200 मिलियन 20 करोड़ लोग अगर 140 करोड़ में से अगर बीमार हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, तो क्या वो देश कभी तरक्की कर सकता है? मैं तो कहती हूँ मुसलमानों को आप भूल जाइए। राष्ट्रवादी हिंदू, नरेंद्र मोदी का वोटर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, आप 20 करोड़ लोगों को समंदर में नहीं फेंक सकते, उनका कत्लेआम नहीं कर सकते, उनके साथ आपको चलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि उस राष्ट्रवादी हिंदू को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये पूरा जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, 20 करोड़ लोगों को आप जेल में भी नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि हर तरफ एक डर और खौफ का माहौल। पर ये बताइए, तो आपने जो कहा सही कहा, लेकिन ये बातें, ये चर्चा, ये डायलॉग कहीं और क्यों नहीं होता? हर घर में तो हो रहा है सर, घर में हो रहा है, हर घर में और हो हर रहा व्हाट्सएप ग्रुप पे हर भी हो रहा है। मोहल्ले में सर, हो रहा है। अरफा की एक बात सर सही है कि ये जो मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल, मुद्दा मैं देश मानता का हूं। है। हाँ, मुद्दा देश का, बिल्कुल। इसलिए उनकी क्या हालात हैं, उनके क्या राइट्स हों, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको लीड करना जो है उनके राइट्स के लिए, वो जाहिर है कि बहुसंख्यक समाज को करें। अब जैसे मोहन भागवत जी ने कई अच्छे स्टेटमेंट दिए कि साहब हिंदुत्व की परिकल्पना मुसलमानों के बिना असंभव है और हिंदू और मुसलमान तो दोनों का statements डीएनए हैं। एक है। नहीं, अगर ये बात उनके कैडर तक पहुंचे तो कोई चेंज आएगा। अब कैडर उनका करता कुछ है, स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं। वी बिलीव इन द ग्लोरी ऑफ दिस नेशन, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भय फैलाया जा रहा है। No, and we like are- I said, sir, the vast majority in this country. हम भी तो is हिंदू हैं secular. ना, हम भी जानते हैं ना। The मैं- vast I majority speak as a remains Hindu of this secular, country. sir. The problem only is that this vast majority has chosen to be silent. It's time that they spoke. बची तो गलती हमारी है, जी हाँ। गलती आप सर, लोगों की है, मुसलमानों मिडिल के क्लास सर- की है। नहीं, मुसलमानों के ज्यादातर मुद्दों पे सर हिंदू लिबरल्स ही बोलते हैं, वही ज्यादा वही बोल हम रहे बोलते हैं, वही बोल रहे हैं। लेकिन जो नजीब सर कह रहे हैं उसमें एक बात है सर, ये जैसे सेकुलरिज्म है, उसे ऐसा रखा जाता है जैसे मुसलमानों का बड़ा फायदा है इससे। हाँ, कुछ भी ये नहीं। सेकुलरिज्म का प्रोजेक्ट सर मॉडर्निटी का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ सेकुलरिज्म जो है वो धर्म के लिए बहुत अच्छा I है, agree. क्योंकि अगर धर्म का कोई राष्ट्र बनेगा तो धर्म के ऊपर स्टेट की मोनोपोली होगी, फिर स्टेट तय करेगी धर्म क्या है। आप सेक्युलरिज्म को छोड़ दीजिए, यू टॉक ऑफ इंक्लूसिव इंडिया। बिल्कुल। Yes. आप काहे को सेक्युलरिज्म इस्तेमाल करते हो? इंक्लूसिव इंडिया मीन्स वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। फर्स्ट वी आर सिटीजन्स, देन वी आर दिस, दैट और द अदर। That's why I started this conversation with that issue. And I think we should protect our citizens no matter which religion they belong to, which caste they belong to. Absolutely. That's the duty of the state And and that's the duty of राष्ट्रवादी all हिंदू of को us. ये भी सोचना चाहिए कि जो भारत नाम का प्रोजेक्ट है, इन तमाम चीज़ों से जो मेजॉरिटेरियनिज्म है ये फेल हो रहा है, जस्ट बिकॉज दिस राष्ट्रवादी हिंदू इतना नैरो अरफा माइंडेड जी, हम इसको सक्सीड कराएंगे, आपकी फिक्र करती हूँ। Thank you very much for being here. It's been a wonderful conversation. It's very kind of you. Thank you, sir. Thank you, sir.